हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and the news out of Chennai is that South Africa have successfully chased down the target against Pakistan. Pakistan losing this game, and well, with that, the chances of Pakistan playing in the semi-finals have diminished quite a bit, but not completely. Maybe there is an outside chance. We will talk about that. With me in the pavilion, I'm joined by four excellent analysts of the game of cricket, four former captains of Pakistan, four outstanding individuals. I've got one of the finest runners and one of the finest finishers of the game, Captain Pakistan. I have Mr. Shoaib Malik. Shoaib, good evening and welcome. Good evening. Thank you. Assalamu alaikum. With that, Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, I've got Misbah ul Haq. Misbah, good evening and welcome. Hey, good evening. Assalamu alaikum. Another Pakistani captain, kept the wickets, great runner between the wickets, known as a man of crisis, and we call him the Silver Fox of the pavilion, Moin Khan. Moin, good evening and welcome. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. And finally, the cricket royalty with us, the Sultan of Swing, the king of all-rounders. I've got the great Wasim Akram. Good evening and welcome, Wasim. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. Alright जी, सबसे पहले नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर. This is how it went down. Pakistan won the toss and elected to bat, and Pakistan scored 270 runs. They were all out in 46.4 overs. Those 18 balls that Pakistan did not, those actually remaining overs that Pakistan did not bat, well, that now eventually has hurt Pakistan. But Saud Shakil there with a very nice half century, looked very mature, very composed. Captain Babar coming in with another half century, and then Shadab with that wonderful innings of 43. The Saud Shadab partnership, a lot of people talk about. Rizwan showed a lot of intent. Unfortunately, he was out for 31. Pakistan all out in 46.4, and Tabriz Shamsi was bought in with the task, and did he deliver or what? He did. 4 for 60, and Hanson there picking up 3 for 43. Then in reply, it was a very interesting chase for South Africa. At one point, it looked like a comfortable win in sight, but then it became topsy-turvy, and from there onwards, it went on. One of the thrilling games of this World Cup. Unfortunately for Babar, his match winner, Nawaz, could not deliver the goods one more time in a critical pressure situation, giving a very loose delivery down the leg side, which eventually finished the game up for South Africa. But great innings there. Afridi there picking up 3 for 45, Osama 2 for 45, and Wasim 2 for 50. South Africa win this by 1 wicket. और इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं points table पे. Right there you have the points table, and South Africa zooming past everybody straight to the top of the table with a very healthy net run rate and 10 points. India now pushed down to second place. New Zealand holds on to the third place. Australia holding on to the fourth place. Sri Lanka go up to the fifth place. Pakistan pushed down to the sixth place. Afghanistan 7. Bangladesh 8th. Defending champions England 9, Netherlands on the 10th. Remember that the top 4 are the ones that are going to play the semi-finals. The bottom 2 will have to play the qualifiers next time round. And that's your points table. All right, Wasim, let me bring it up to you straight away. So close, yet so far away. Yes, in the end, they made a game out of it. Pakistani bowlers, Haris bowled his heart out. It's good to see Wasim making an impact in this game because he's got the talent. We all knew. उसको consistent chance नहीं था मिला, मगर आज उसने बताया कि pace भी थी, जोर भी लगाया उसने शुरू में, तंग भी किया बैट्समैनों को, consistent 140 bowling की. That's a good sign. Couple of mistakes in the end, I think. मेरे ख्याल में, this is my opinion. एंड जब कोई टीम बुरा करती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो उस पर क्रिटिसाइज़ करना बड़ा नॉर्मल है. एंड आई थिंक जब आखिरी ओवर नवाज़ को जो मिला है, अब सारे नवाज़ पे हम अटैक कर देंगे द होल कंट्री फॉर सम और रीज़न, बट उस वक्त उसामा के 2 ओवर बचे थे. हु वाज बॉलिंग बेटर? Who was bowling better? These guys can will second my kind of suggestion. Usama Mir. Who's going to किसने बैफल करना था टेल एंडर को विद मिस्ट्री, गुगली और लेग स्पिनर? ठीक है, उसके पहले 3-4 ओवर अच्छे शायद नहीं हुए, पर वो एंड में 2 विकेटें वो उसामा भी ले गया 45 रन दे के 8, और 3 ओवर बचे थे. अगर नवाज़ की जगह उसामा करता ओवर
अगला ओवर अगर आता तो नवाज और फिर आखिरी ओवर फिर आप उसामा पे आते। बाकी कप्तानी ठीक हुई है, आपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग करा दी, विकेटें मिल गई, बट नवाज का वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्यों बॉल किया। एक तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, और प्लस मिसबाह और शुएब काफ़ी दिनों से हमें बता रहे हैं, स्पिनर का इतना मुझे आइडिया नहीं, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, जब स्पिनर यहाँ से बॉल करता है, ऊपर से टर्न होता है, उसका बॉल यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉल अंदर आएगा, जो बॉल आएगा वो ड्रिफ्ट डाउन ही लेग साइड करेगा। एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक। जब रन कम चाहिए होते हैं आपको और आपका मेन बॉलर जो विकेट ले रहा है, स्पेशली एट दैट स्टेज, वो नहीं हुआ। दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक बाय आवर कैप्टन। Well, you know, the captaincy mistakes have happened. But let me take you, Misbah, let me bring this to you. Pakistan again not batting out. अपने पूरे 50 ओवर आज भी बल्लेबाजी नहीं की। 47.2 ओवरों में हमारी टीम ऑल आउट हो गई। इस पूरे वर्ल्ड कप में मासवा के अफगानिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर अपने खेले, उसके अलावा किसी भी मैच में अपने 50 ओवर पूरे नहीं किए। ये मतलब ये टॉप ऑर्डर का फेलियर होगा, मिडिल का होगा या टेल का होगा? I mean, why did we consistently have this issue? देखें, आज भी अगर देखें तो जैसे वसीम भाई ने बात की, वो तो एंड था ना, आप 5 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है उसामा बनता उसामा का था, लेकिन आप 20 बॉल पहले आउट हुए, 46.2 ओवर्स, थोड़ा सा सेंसिबल वहाँ पे खेल के आपके पास नवाज उस टाइम पे सेट था। 10 से 12 रन भी अगर आपने और किए हुए तो एंड पे देख लें कि वो कितने कीमती रन्स थे। तो ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस की वजह से भी हमें ये गेम कॉस्ट कर गई है। उनके अगर टेल एंडर्स की बात करें, अंडर प्रेशर थे वो, जो आखिरी 21 रन उन्होंने किए, बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, बट एक चीज़ ज़रूर की है जो हमने नहीं की, दे जस्ट स्टूड देयर। ठीक है जी, बॉलें आएंगी, हिट नहीं मार रही, खुद ब खुद जो बॉल लग के इधर उधर जाएगा हमें रन मिलेंगे। सो दैट वाज वन डिफरेंस। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हम मैच खेले, ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने एफ़र्ट की, टीम ने भी एफ़र्ट की, बट गलतियां हैं। आपके हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला, किसी ने भी वो 91 की इनिंग नहीं खेली जो मार्करम खेल के गए। वो छोटे छोटे टोटल हुए 50, 31, 21, 52, 43, 24, थोड़ा सा फ़र्क आप डाल से, एक थोड़ी लंबी इनिंग यहाँ पे होती तो डिफरेंस होता, बट ओवरऑल आई थिंक द वे पाकिस्तान आज खेली है और जैसे कम बैक किया गेम, आखिरी बॉल तक एफर्ट नज़र आई है, that was something special. Yeah, I think Pakistani fans around the world would be very happy with that effort, because हम यही कहते थे कि हार जीत तो होती है खेल के अंदर, बट हमें फाइट नजर आनी चाहिए। और आपने भाई सही पॉइंट आउट किया कि फाइट, हमारे फास्ट बॉलर्स ने आज बड़ी फाइट की है। अनलकी भी आप देखेंगे, लेग बिफोर डिसीजन जो ये मैं उस लेग बिफोर पे आता हूँ, बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज मोइन जो थे वो काफ़ी मोइन हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस अबाउट दैट अपील जो कि अंपायर्स कॉल हो गई जब रिव्यू भी लिया गया। मोइन, व्हाट डू यू थिंक could have been and did not happen, of course we all know, लेकिन टोटली मैं तो कहूँगा अंपायर की मिस्टेक है, उसको आउट देना चाहिए था वहाँ पे, बिकॉज कि जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा, उधर से लेग स्टंप उसका नज़र आता। अगर ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेग स्टंप पे आपको नज़र आ रहा था स्टंप, तो क्लियरली फिनिश होनी चाहिए थी। हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2-3 दफ़ा ऐसी डिस्कस किया। अब ये देखें लेग स्टंप नज़र आ रहा है, ठीक है, वो देखें लेग स्टंप नज़र आ रहा है, क्लियरली आउट था। ये अंपायर को आउट देना चाहिए था, उसके बाद रेफरल पे जाता और रिव्यू होता तो फिर देखा जाता जो भी हो रहा था। बट जो क्लिपिंग दिखाई गई है एंड में, क्लिपिंग भी मैं समझता हूँ कि इसकी गलत दिखाई गई है कि क्लिप होता हुआ जा रहा है, बट ये पूरा लेग स्टंप को बॉल हिट होना था, फुल बॉल हिट होना था, ये क्लिपिंग just bad luck there, umpires call. थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ऐसे आउट अंपायर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जस्ट क्लिपिंग, इवन आज भी इसी मैच में वार्नर other day. जी बिल्कुल। And स्टीव स्मिथ कैसे हुआ था? स्टीव स्मिथ ऐसे लग रहा था ऑफ स्पिनर का बॉल चला So गया। that's why people might not agree with me. I've been saying it from last, I don't know, since the DRSL came. Technology is meant to be 100%. Yes. It should be 100% with all the information in technology nowadays, but it's 98 point accurate apparently. That not at all. Call is It's got to go. When the Dusan का आउट, जो कि अंपायर्स कॉल बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ICC को इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नट आउट भी दिया है तो फिर आउट होना चाहिए।
और अगर नॉट आउट दिया है, नॉट आउट ही रखना है तो फिर एनी केस नॉट आउट रखें। Not out रखें। ये जो इन बिटवीन फेवर बेनिफिट ऑफ द डाउट ओनली गोज टू द अंपायर, देन हाउ कैन द बॉलर आर द बॉलिंग कैप्टन, वो कैसे श्योर हो सकता है कि यार ये पूरा लगेगा या नहीं लगेगा? उसको तो आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना बैट्समैन को भी, कि क्लिप भी कर गया तो आप हारे गए। अंपायर को आप बेनिफिट दे रहे हैं। मैंने ये कितनी दफ़ा इनको कहा है कि आप ये ज़रूर कर लें कि उसको अंपायर की गलती आप ना माने, उसकी जो नंबर्स आप उसको देते हैं, मार्किंग होती है, बट जस्ट ये ख़त्म करें अंपायर्स को। Right, दोस्तों, इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा right here on the pavilion, but when we come back there's more to talk about this game. Don't go away, keep watching our A Sports, ARY's app and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. चेन्नई से खबर यह है कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को ये मैच हरा दिया है, and that makes Pakistan's worst losing streak in World Cups. 4 लगातार मैचेस आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं हारा था। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 4 लगातार वर्ल्ड कप मैचेस पाकिस्तान जो है हारा है, और ये पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा रन चेस किया है वर्सेस पाकिस्तान. So congratulations to South Africa and all the South African fans out there. Your team truly played well and deserved this victory. For Pakistan, a lot of question marks about some decisions. एक तो कुछ हमारे साथ बैड लक भी हुई आज एम्पायरिंग के ऊपर, हमने जो बात अभी की थोड़ी देर पहले, मोइन जिसके ऊपर तस्करा कर रहे थे जिसके ऊपर. But now let's get into the nitty-gritties of the performance. पहली इनिंग से शुरू करते हैं जब पाकिस्तान ने बैटिंग की है, तो let's analyze that part first. Abdullah Shafiq not really getting a start, neither. Both the openers failing today. Again, it was Babar Azam who had to come out there and then kind of steady the innings with the help of Mohammad Rizwan, who showed a lot of intent today. Same problem, Misbah, for the top order, not getting the combination right. क्या issue चल रहा है हमारे top order के अंदर? देखिए, आई डोंट नो, आज तो हम लोग एक स्टेज पे बड़ी ज़बरदस्त हमारी सिचुएशन थी, और लुकिंग एट द वेन्यू, जो एवरेज स्कोर था वो नज़र आ रहा था कि अगर हम पूरे ओवर्स खेलते हैं तो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 300 मार्क, शायद उससे बेहतर भी हो जाता, बट फॉर सम हाउ वी केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स. थोड़ा सा हमने बीच में एक चेंज भी किया. इफ्तिखार पहले है जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली ही स्ट्रगल्स इन द मिडल पीरियड जब स्पिनर्स ऑन होते हैं, और एग्जैक्ट शम्सी उस टाइम पे बॉल करने आए हैं. हमारे जो बेस्ट स्पिनर को खेलने Let's start with the top order. Let's focus with the top order. We come down the order one by one. Okay, let's talk about how Imamul Haq got out. How was the setup done and how he was taken out of the equation? बिल्कुल मेरे ख्याल में प्लान सेट था. अब्दुल्ला शफीक को भी वो देख रहे थे, उसको थोड़ा सा ऊंचा बाउंसर किया है, फिर इमाम को बाउंसर पे सेटअप किया है, और एग्जैक्टली वो जो फील्डर उन्होंने थोड़ा सा चौथी स्लिप गली में फील्डर लिया है, और इवन पॉइंट का फील्डर भी अंदर. ये निस्बत जरा टेक अस थ्रू, ये जो इमाम की विकेट आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, टेक अस थ्रू, चूंकि ये बाकायदा सेटअप किया गया है, एंड आई थिंक एट दिस लेवल बैट्समैन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको सेटअप किया जा रहा है. वी ट्राइंग टू ब्रिंग दैट अप ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, एंड आई आस्क मिसबाह उल हक टू टेक अस थ्रू दैट. एग्जैक्टली अगर आप इंडिया का मैच याद करें तो इमाम को अर्ली और अंदर पे बॉल किया, फिर एग्जैक्टली सेम फील्ड रखी है उन्होंने, 3 बंदे उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट रखे हैं, गली रखी है, और पुश किया इमाम को इसी जगह पे बॉल जहाँ पे कॉट बिहाइंड हुए. यहाँ पे या तो आप कॉट बिहाइंड होते या कहीं पे भी इतने खिंचे हुए बॉल को आपकी शॉट लगती भी, तो जो 3 फील्डर खड़े थे उनके पास जानी थी कहीं पे भी. मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमने देखा इमामुल हक पुल शॉट पे आउट हो रहे थे, 2-3 दफ़ा आउट हो गए उस बात पे. उन्होंने फिर क्या किया कि उनको बम्पर्स कर रहे थे, जिसको हम बाउंसर्स कहते हैं, उन्होंने डक करना शुरू कर दिया. राइट. उन्होंने बी प्लान पे आए. उन्होंने कहा इमाम क्या कर रहे हैं, वो यूँ रखते हैं, थर्ड मैन पे बॉल जाता है, सिंगल बन जाता है, यहाँ पे आते हैं, वो ग्लांस करते हैं, इधर सिंगल मिल जाती है. उन्होंने कहा अच्छा अब हमारी स्लिप निकाल के हम गली में रखेंगे, आउटसाइड ऑफ स्टंप आगे बॉल करेंगे, वो बी प्लान पे चले गए. जब वो बी प्लान पे गए और उधर से 18 बॉलें वो ऑलरेडी खेल चुके हुए थे, 12 रन्स थे उनके, फिर उन्होंने वो अटेम्प्ट की उस शॉट को, और जो कि वो गली में गया. तो पहले ए प्लान जो था उस पे वो कामयाबी नहीं मिली, वो बी प्लान पे गए. अब ये था कि काउंटर इनको करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके. अब हम आ जाते हैं अब्दुल्ला शफीक पे. अब्दुल्ला शफीक पे मोइन भाई ने बड़ा हिसाब लगाया है यहाँ पे. अभी अब्दुल्ला की नहीं, मैं कुछ और लिख रहा हूँ. आप कैरी ऑन रहे. घर दा सौदा ले आने वो लिख रहे हैं. अच्छा, आपकी बात मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ जी. अब्दुल्ला शफीक, फिक्र ना करें.
देखिए अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में है और हम लोगों ने देखा कि वो पिछला बॉल जो थे वो अच्छा खेल रहे थे और उनकी जो अटेम्प्ट थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी, तो बिल्कुल सही intent तो अटेम्प्ट उनकी थी। सही सिर्फ थोड़ा अनलकी रहे कि वो नॉर्मली ये शॉट जो है वो नीचे नहीं खेलते और ऐसे खेलना भी नहीं चाहिए। सही है। वो ऊंचा खेलने गए लेकिन वो कनेक्शन जो था बॉल का बैट के साथ वो ऐसा नहीं था कि वो बाउंड्री क्रॉस कर जाता, जिसकी वजह से ये हुआ। बाबर ये था कि बाबर 50 रन, बाबर ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई मोइन, और हम सॉरी शोएब हाफ टाइम में भी हम इसी की बात कर रहे थे। ये बाबर की आपको विकेट दिखाते हैं, जरा देखिएगा इसको गौर से मोइन, एंड टेल अस व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन दैट स्वीप शॉट, बिकॉज आप अपने टाइम पे बेहतरीन स्वीप खेलते थे, so I'm sure you'll be able to guide us through कि what went wrong there and what you should not do. ठीक है, इस पे क्लियरली एक तो देखें, एक तो बॉल की लाइन में नहीं आए थे वो, सबसे पहली बात, और जो उनका एंड में वेट था, आप ये देखें, आई डोंट थिंक सो कि बॉल की लाइन में दूर चले गए बॉल से और नज़र भी हट गई बॉल से इनकी। वेट इधर राइट साइड पे जाने की वजह से, टिल्ट होने की वजह से थोड़े से एंड में उनके जो बैट जो ग्लव्स थे वो बाहर निकल गए, जिसकी वजह से एंड में देखे कि ये लगा है इनको, बॉल नहीं देख रहे, बॉल नहीं देख रहे वहाँ पे glove। ये वन ऑफ द बैड लक कहूँगा, बट जो अटेम्प्ट किया था उन्होंने, आई थिंक बॉल की लाइन में आना चाहिए था उनको, फिर स्वीप खेलते तो मेरा ख्याल है कि फुल ब्लडेड शॉट भी जाना था, मिडल होना था। जी शोएब, ये तो टेक्निकल चीज़ मोइन भाई ने एक्सप्लेन की या मिसबा भाई ने, मैं टेक्टिकल की तरफ जाता हूँ। अगर हम विराट को देखें तो वो नहीं खेलते स्वीप, और इस साइड पे शॉर्ट मिड विकेट खड़ी थी, जो पीछे एक फील्डर खड़ा था वो स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में खड़ा था, और एक शॉर्ट फाइन लेग खड़ा था थोड़ा सा वाइड करके। ये 4 फील्डर्स थे उनके जो बॉलिंग कर रहे थे शम्सी। तो बाबर ने अगर 50 से पहले तक ये वाला शॉट नहीं खेला था तो आपको बाद में भी ज़रूरत नहीं थी। हमने नहीं देखा विराट की वो शॉट नहीं करता है, वो बैक करता है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ्स है, उन शॉट्स को वो बैक करता है। और अगर ये शॉट बाबर खेल ही रहे थे तो उससे पहले माकरम भी आए थे, पीछे स्क्वायर लेग नहीं थी, उन्होंने ये शॉट नहीं ट्राई किया। तो जब आपने टीम को एक ऐसी जगह से ऐसी जगह पे लेके गए, आपने होप दिलाई है कि हम ऐसे टारगेट पे पहुंच सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, तो फिर अगर आपका ये शॉट नहीं है तो मत खेलें उस शॉट को। ये थोड़ी सी मिस्टेक जरूर थी, लेकिन आई एम श्योर जो मोइन भाई ने मिसबा भाई ने बताया, हम टेक्निकल बात कर रहे थे, बट वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल पॉइंट दैट यू ब्रिंग इनटू दिस कन्वर्सेशन। नाउ लेट्स गो, अब इफ्तिखार की बात करते हैं। शम्सी को खास तौर पे एक रोल के लिए लाया गया था और उन्होंने भरपूर तरीके से वो रोल अदा किया, एंड यू राइट दैट यस वसीम इज सेलिब्रेटिंग बिकॉज़ आज प्लेयर टू वॉच आउट। Random. I'm sad like you guys. अच्छा चले ठीक है, no but you do, that was your I took his name to be the player of the and match in a way. he was from South Africa, so you should be happy about Because that. I knew, मुझे एशिया कप में पता था कि ये कुलदीप से फंसेंगे, और वही हुआ। Right. एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, फिर यहाँ भी फंसे। फिर मुझे पता था तबरेज़, मैंने कहा था सुबह कि ये खिलाएंगे साउथ अफ्रीकन। उन्हें पता है पाकिस्तान का रैकेट इज़ नॉट गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स, एंड दिस प्रॉब्लम नॉट जस्ट नाउ, ये पिछले PSL ले लो, उसले PSL तबरेज़ हमारे साथ था, वो जो 2-3 मैच खेला, he had to go, he got wickets because nobody could read him in Pakistan, unfortunately. मगर now the question is how these boys can improve against the left arm leg spinner. सारी टीमें अब जिनके पास होगा वो तो लाएंगे साथ, वो तो खिलाएंगे। नूर अहमद, कुलदीप, आज तबरेज़ शम्सी, और ये पिछले 4 साल से यही हो रहा है। अगेन सेम थिंग। और जो नॉर्मली बात हो रही थी इफ्तिखार की भी कि उसको प्रमोट करें, ठीक है, ये बात हो रही थी जब तबरेज़ शम्सी खेल रहा था और हमने देखा कि उसके ऊपर डिले भी किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में टेक्टिकल चेंज, अगर आपने माइंड बनाया भी था इफ्तिखार को 5वें पे खिलाने का, उस टाइम पे जब आपने देखा था कि तबरेज़ बॉलिंग कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपके सऊद शकील जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं वही उसी को भेजना चाहिए था। हमने वो जो एंड पे इफ्तिखार का एक रोल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो वहाँ पे आउट हुए, उनको भी मेरे ख्याल में सेंसिबल खेलना चाहिए था। आप जिस बॉलर की आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये तो आप जो शॉट था ये बिल्कुल ऐसे ही था कि ठीक है, लगा ना लगा। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो जैसे सर्वाइव कर रहे थे, उसको नॉर्मली सिंगल्स मिल रहे थे और आप आराम से खेल रहे थे, बाकी बॉलरों को उन्होंने थोड़ा चार्ज लेना शुरू किया था। ये देखें आपके सामने आ रहा है, ये इफ्तिखार पहला गेंद था ये उस ओवर का शम्सी का, और ये गुगली थी जी,
ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की गुगली थी और अगर हम देखें तो मिड ऑफ ऊपर थी। अगर उन्होंने हाथ चेक किया होता तो वो आराम से चिप भी मार सकते थे, वो भी 6 रन हो जाने थे। अगर 6 ना भी होते तो एटलीस्ट मिड ऑफ ऊपर था, चौका 4 रन आपको मिल सकते थे। नॉर्मली इफ्तिखार को हम नहीं देखते कि ये ऐसे डाउन द विकेट निकल के हिट मारते हैं, खड़े खड़े विकेट मारते के हैं, अंदर बिल्कुल। रहते हैं, बट इनको जो कॉन्फिडेंस मिला था ना, वो जो इन्होंने छक्का मारा पिछले महाराज को, राइट, वो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन रीड जो मलिक ने बात की ना, वो रीड बॉल को गलत कर गए, हल्का सा मिड ऑफ पे पुश करते तो शायद छक्का भी हो सकता हालांकि है। Alright, भाई आपने सॉरी, चूंकि मिसबा मैं आपके पास आना चाहता हूँ बिफोर आफ्टर द ब्रेक, बट बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, शम्सी को आपने एक तरीका बताया कि उनको रीड करने का एक तरीका है, and I think there's someone has missed that trick. We're going to talk about that. You're watching The Pavilion. We'll see you after this break. Right, welcome back to The Pavilion. I'm Fakhriyan Ahmad. You're watching Sports and Sports in the Airways app. And the news out of Chennai is that South Africa have won their game against Pakistan. And this is for the first time in 10 years that South Africa has beaten Pakistan in an ICC event. तो जो उनका जिंक्स था 10 साल का, वो पाकिस्तान को किसी भी ICC event पे नहीं हरा पा रहे थे, आज वो टूट गया. And with that, we were talking with our panelists. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram with me. ब्रेक पे जाने से पहले मिसबा, हम वो तबरेज़ शम्सी की बॉलिंग की बात कर रहे थे, इफ्तिखार कैसे आउट हुए, और तो उनको रीड करने का, यू सेड दैट देयर इज अ वे यू कैन रीड व्हाट ही इज गोइंग टू डू. देखिए, अगर हाथ से आपको पिक नहीं हो रहा तो एक और चीज़, अगर आप उसकी बॉलिंग में कंसिस्टेंटली देखें, जब भी वो गुगली करता है राइट हैंडर को, वो मिडिल लेग से करता है. ठीक है. उसकी लाइन दे के, अगर मिडिल लेग पे अगर बॉल है, उसको आप गुगली ही खेलें तो आपके लिए मसला नहीं है. वहाँ से अगर लेग स्पिन अंदर की तरफ आएगा बॉल, तो वो आप सीधे बल्ले से खेलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको. और जो थोड़ा सा वो आउटसाइड ऑफ स्टंप जाता है, वो बॉल ये देखिए ना कि ऑफ स्टंप के बाहर से वो अंदर ला रहा है बॉल को. ये सारे बॉल वहाँ से, तो थोड़ा सा लाइन से आपको ये देखें, लाइन से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो क्या कर रहा है. ये वाला बॉल मिडिल स्टंप पे था, जो भी वो गुगली कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में जब आपको हाथ से पिक नहीं होता तो आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इस चीज़ को जहन में रख के उसके मुताबिक एडजस्ट करें. चलें, तो ये हो गए. फिर बात कर लेते हैं ज़रा सऊद शकील की. बड़ी ही नपी तुली और बड़ी एक मैच्योर इनिंग्स हमें नजर आई है आज सऊद शकील की तरफ से मिडिल ऑर्डर में. वसीम, he is a good player. Yep. And got good technique, got good head on his shoulders, under pressure, run a ball. अनफॉर्चुनेट के एंड तक नहीं जा सका, उसको भी शम्सी ने आउट किया. वही प्रॉब्लम हमें मिडिल ओवर में वही हो रही है. बट ओवरऑल कमिंग बैक टू हिज इनिंग्स, 7 fours, played really well against the fast bowlers. गुड, पता था कि फील्डर कहाँ पे हैं, कहाँ पे मैंने शॉट मारनी है. फ्रंट ऑफ स्क्वायर ये मारी इसने, निकल के इनसाइड आउट भी मारी स्पिनर्स को, और ये पिकअप शॉट वाज एक्सेलेंट. Over and all, I think he's a very good cricketer, and I'm glad Pakistan have found this young batter, especially in the middle order at number 4, 5, 6 पे. जब विकेटें गिरती हैं तो कम से कम ये आपकी स्ट्राइक रोटेशन में रखता है. राइट. सो ये उनका डिसमिसल था, बैकफुट पे कट करना चाह रहे थे, एंड ग्रेट बॉल. थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हुआ है, और वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि यहाँ और पिछली विकेट्स में थोड़ा सा ये फ़र्क ज़रूर था, बाउंस का फ़र्क था, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था स्पिनर को. इंटरेस्टिंगली उन्होंने इंटरव्यू में एक और बात भी की कि उनसे पूछा गया कि आपको लगा कि वो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और इफ्तिखार को ऊपर भेज दिया गया. उसने कहा जी मुझे तो जो टीम रोल देगी मैं तो उस रोल के अंदर अपने आप को, दैट्स अ परफेक्ट आंसर टू कम फ्रॉम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. के उन्होंने कहा कि मेरा रोल जो उन्होंने मुझे उस दिन आज असाइन किया, मैंने उसके ऊपर जाके खेला. सो दैट वाज ज़बरदस्त मेरे ख्याल में खेले हैं. हालांकि नंबर चेंज हुआ है, कोई फ़र्क नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने, और बड़ा प्रेशर वाली सिचुएशन थी वहाँ पे आके. मेरे ख्याल में शादाब और इनकी इनिंग ना लगती तो हमारा कोई चांस नहीं होना था. जी बिल्कुल. ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने बॉल कंज्यूम किए हैं, उन्होंने अटैक किया है, चौके मारे हैं, और बाकायदा एक पॉजिटिव इनिंग थी. जी, मैं ये कह रहा था, अभी आप बात कर रहे थे कि शम्सी को कैसे पिक करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. नेचुरली आप जिस वक्त खेल रहे होते हो, प्रैक्टिस करके गए, होमवर्क करके गए हुए होते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती. एक तो ये सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान टीम अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 3 महीने में श्रीलंका में जैसे रही है, मेरा ख्याल है कि एक तो
कैंप होना चाहिए था यहाँ पे, और आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, इस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनके खिलाफ आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते थे। एक टेस्ट मैच इन्होंने किए हैं, फिर 3 T20 किए हैं। कल भी हमने बात की तो था, वो तो नहीं आ सकते थे ना, वो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन ये पहले से अज्यूम करना चाहिए था आपके, अगर ये मैचेस आ रहे हैं आपने कहीं तो ब्रेक लेना था। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता कि पाकिस्तान टीम जाने से पहले एक कैंप लगाती कोई 15-20 दिन का, जहाँ पे हर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता, उन ओपोनेंट्स बॉलर के तर्ज के बॉलर आप कैंप में बुलाते या आप किसी को भी इनवाइट करते जो प्रिपेयर तो करते। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, इमीडिएट जो इंस्टेंट हल बताया मिसबा ने, बिल्कुल ठीक बताया कि आप हाथ से पिक करते हैं, वो 2 जो यंग लड़के हैं, फैसल अकरम एंड सुफियान, आई थिंक नाम है, सुफियान मुकीम, ये दोनों, वन ऑफ देम वाज इन लाहौर इन द लिटिल कैंप दे हैड। मेरा एक सवाल है वसीम, एंड सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग, इन्होंने कहा कि कैंप नहीं लगाया जाने से पहले, हम वर्ल्ड कप खेलने जाने, कैंप क्यों नहीं लगाया हमने? Because we were busy playing cricket. The idea of a camp is to play cricket, and if you're playing cricket, then you don't have time. So there was no gap between we have the 2 matches. test matches in Sri Lanka, then we had Asia Cup. 3 ODIs against Asia Cup, Afghanistan, then the Asia Cup. Asia Cup 20 को खत्म हुआ है। बीच में LPL था, और ज़्यादा गैप नहीं था, वीक 10 डेज का गैप था, जहाँ पे और उस दौरान फिर आपका बोर्ड भी चेंज हो गया, वो LPL को गए हैं, कोई नहीं गया, कुछ नहीं था पता लग रहा क्या। देखिए, अगर आपने रिस्ट स्पिनर को पिक करने के लिए, सिर्फ पिक करने के लिए एज अ बैटर, मैं अभी वसीम भाई आदों का नहीं पता चलता, लेकिन मैं जब आपको हाथ नहीं समझ आ रहा ना, कि आपको गुगली नहीं समझ आ रही, आपको फ्लिपर नहीं समझ आ रहा, फिर मेक श्योर यू डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स एज अ बैटर, और आप मेक श्योर ये करें कि अगर आपको हाथ नहीं जज हो रहा ना, अनलेस उसने बहुत आपको करीब बॉल किया है, तो आप फ्रंट फुट पे जाओ, वरना आप बैक फुट पे ज़्यादा खेलो, बैक फुट पे खेलो, बट सीधा खेलो, वी में खेलो, ताकि ऐसा नहीं होता कि आप 5 रिस्ट स्पिनर नहीं आ जाते, वही आता है, एक ही आता है मोस्टली टीम्स में। हाँ, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है इससे फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। जितने बैटर्स हैं वो कोशिश ये करें कि जो रिस्ट स्पिनर्स हैं उन पे कीपिंग करें, उन पे कीपिंग करें, सिर्फ उनका हाथ पिक करने के लिए, और जब आप खेलेंगे आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि श्रीलंका के अगेंस्ट संदाक करने आना था, तो हमने कोशिश की थी उस टाइम, पाकिस्तान में जितने 2-3 बॉलर थे, फैसल अकरम भी थे और भी 2-3 बॉलर थे जो ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते थे, और नेट में अलग से एक नेट उनके लिए रखा हुआ था कि आप हर प्लेयर ने आके 1 घंटा बैटिंग करनी है, और यू हैव टू कॉल, जैसे वो बॉल रिलीज़ करता है आपने बोलना है कि ये लेग स्पिन थी, ये गुगली थी या ये फ्लिपर था, ताकि वो आप उसको क्लोजली वॉच करें। और वो थोड़े पीरियड के लिए था, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ा, बट अगर ये बैट्समैन उनको पता है कि यार पिछले 4 साल से हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको तो ये रोज़ खेलना चाहिए, 1-1 घंटा खेलना चाहिए, जब तक आप उसको पिक करना शुरू नहीं कर देते। किया था, अब वो कह रहे थे कि हमें जाना है, हमने असेस करने कॉम्बिनेशंस, और अगेन हम टीम जेल नहीं किया, टीम ने जेल नहीं किया, इम्प्रूवमेंट इन मेनी एरियाज, वी हैव टू, एंड देयर आर होल्स इन द टीम। तो क्या ये वही होल्स तो नहीं थे, ये वही सुराख तो नहीं थे टीम के अंदर जिसके बारे में हम 4 अक्टूबर से बात कर रहे थे, जिसपे हमें लोग कह रहे थे आप लोग क्या कह रहे हैं? वही होल्स थे, बट ये इंग्लैंड से बैठ के नजर नहीं आते इतनी दूर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम वो करते हैं ना यहाँ पर बात, तो इन्होंने ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से कह दिया कि जी बिल्कुल है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ब्लेम करने की, हमारे यहाँ तो आदत है ना, तो आप चीफ सेलेक्टर के ऊपर बात करें, ना आप कोचेस के ऊपर बात करें। Somebody has to break that news to Mickey Arthur. It is part of the job. If you don't do well, if you don't qualify, you will get criticized, and that's normal. We've been through it, and the boys will go through it. You will get axed. Mickey Arthur was brought in for a job, and so was the remaining coaching staff. If you don't deliver, and then you tell us after we are pretty much sealed in this World Cup कि आगे जाने की कोई नहीं है। जी? 2 tournaments. 2 tournaments back to back, Asia Cup and then किसी जर्नलिस्ट ने should have asked him, okay, नहीं एक्चुअली शोएब हमारे पास ये वो आए क्लिप्स आए हैं, हमारे पास पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई नहीं है। He was talking about the holes. What are the holes? मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या वो ही होल्स तो नहीं थे जिन पे हम बात कर रहे थे कि जी हमें नजर आ रहा है आपके पास एक स्पिनर होना चाहिए, एक प्रॉपर स्पिनर टीम में होना चाहिए, क्या वो होल था जिसकी ये बात कर रहे हैं जो अब इनको नजर आने शुरू हुए? सो मिकी आर्थर के लिए मैं बिल्कुल वसीम ने सही बात की, एंड अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट आई एम श्योर के मिकी not good enough by no means good enough, whatever you just said over there. We love our boys did show that they
put their hearts on their Yes. sleeves today, and we appreciate Babar Azam and his team today for the fight that they put up. This was the team जिसको हम ढूंढ रहे थे पिछले 3 मैचेस के अंदर, but now for you to come on television and say, hey, don't blame us, nothing, we'll go back and we'll assess and we'll plug the holes and we'll do that. Not good enough. Not good enough. Not good enough. With that, we're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. The news out of Chennai, not good for Pakistani fans today. Very disappointed fans. हम अपनी social feeds देख रहे हैं और बहुत नाराज, गम, गुस्से में नजर आते हैं fans, which is a normal reaction. But at least we should all be happy that we saw a really good team effort there by Babar Azam and the boys. They tried to fight this one. Something that was missing in the previous games. However, break पे जाने से पहले हम मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे थे, अभी उन्होंने मैच की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे जो है वो होल्स हैं और हम असेस करेंगे अपने कॉम्बिनेशंस और फिक्स करेंगे बहुत सारी चीज़ें, and we have to improve in lot of areas. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे वसीम, जब इंडिया से हम मैच हारे थे तो तब मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। फिर उन्होंने कहा था हमें कि जी कोई मसला नहीं है, हम इंडिया को सेमीफाइनल में मिलेंगे या फाइनल में मिलेंगे। I mean, weren't we getting too ahead of ourselves, to be making, and then today is a totally different statement, because back then he was saying we're sure shot, there was just bad luck, but today he's saying कि नहीं किसी को blame ना करें और हमें तो बट ठीक है, हमें पता था कि ये सारे हमें नजर आ गई ये सारी की सारी चीजें। I suppose after today's defeat he's kind of lost as well himself. He didn't know what he was saying. Obviously उसने कुछ problems बताई हैं जो कि 3 महीने पहले बतानी चाहिए थी, 2 महीने पहले, and it is tough. I'm not blaming anyone. Look, I don't want to be a broken record कि वो बोल ही जाऊँ, but एक क्रिकेट डायरेक्टर अगर आपका इंग्लैंड में रह रहा है, वो वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले आएगा, एशिया कप में 3 दिन के लिए आया, then he gone back. So how is that gonna work? Please somebody explain that to me. I think इनको जो रखा गया था, I think वो फरमाइश पे, सॉरी मोइने पे बीच में पहले ब्रेक से पहले कह दिया था ये वो वाले सुराख थे जो लंदन से नजर नहीं आ रहे थे, इतनी दूर से वाकई नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरह इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, आई थिंक कोई भी नहीं चाह रहा था कि इनको रखा जाए, बट चेयरमैन ने खास तौर पे खुद इंटरवीन करके कि नहीं, इसी को मैंने रखना है। मैंने चाहिए जी बिल्कुल, मैंने चाहिए है। तो आई थिंक ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए इन लोगों को जो खुद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्रिकेट बोर्ड्स में आते हैं, एंड एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट एक वाहिद चीज़ मुल्क में रह गई जो हमारी एक बाइंडिंग फोर्स है, कौम को इकट्ठा करती है। तो इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए था कि ये अवेलेबल ही नहीं है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है कोई इंसान, कोई कोच, तो कैसे कोचिंग कर सकता है? I completely agree. In a deeply divided and polarized society, एक बड़ा strong bond आता है क्रिकेट के साथ जब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करती है, और इसलिए मेरी गुजारिश होगी तमाम अगेन जो इस मुल्क के करते धरता हैं डिसीजन मेकर्स हैं, खुदा का वास्ता है आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ना कीजिएगा, और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं हम इनकी इज्जत करते हैं जो रहे हैं चेयरमैन सारे के सारे, ये अब ऑब्सलीट लोग हो चुके हैं। ये पिछले जितने 3-4 चेयरमैन गए ना, ये ऑब्सलीट हो गए हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। 80 और 90 की दिहाई के लोग अगर आप लगा के हमारे सर पे मुसल्लत करते रहेंगे तो हमारी क्रिकेट वहीं फंसी रहेगी। You get someone who's 60, 65, who's got experience in managing 50s. अगर प्रीवियसली भी आप देखें 94 तक आपके पास 4 इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल्स थे, स्नूकर, हॉकी, स्क्वॉश, क्रिकेट। कहाँ चले गए वो सारे स्पोर्ट्स? क्यों चले गए वो स्पोर्ट्स? इसी तरह यही हुआ है, यही ट्रेजेक्टरी रही थी सारी चीजों के अंदर। एनीवे, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी, वो है हम सिर्फ, मैं पॉजिटिव पे रहूंगा। पॉजिटिव ये था कि आज हमने बच्चों को, अपनी टीम को, बाबर आजम को, अपने लड़कों को लड़ाई करते हुए देखा। ये और बात है कि बाबर आजम के जो मैच विनर हैं नवाज, जिन पे वो इतना मान करते थे, उनको बोलते थे, उनको कॉन्फिडेंस हमेशा देते रहे। एंड फिर वही वाली बात है कि खाम में बाबर आजम पे कभी बार ज्यादा क्रिटिसिज्म आ जाती है जब आपको आपका कप्तान इतना कॉन्फिडेंस दे के इतने इंपॉर्टेंट वक्त पे अगर कोई जॉब देता है कि यार ये अब ओवर आपने करना है, गो कि वो एक अलग डिबेट है कि उसामा मीर को ओवर देना चाहिए था उस वक्त या नवाज को। यू नीड टू डिलीवर द गुड्स। पता लगेगा जी। हमने अभी आते हुए एक वीडियो देखी थी, उसमें भी वहाँ पे रिजवान ने इंटरवीन किया है, इफ्तिखार ने इंटरवीन किया है कि नवाज को लेके आओ। आई थिंक उसामा के 2 ओवर पड़े हुए थे जी। टेल एंडर्स को आप इन दोनों बैट्समैनों से पूछ लें कि किस बॉलर के खिलाफ मुश्किल होती है। लेगी पूरी दुनिया क्लब लेवल तक में लेगी, कोई मुश्किल नहीं। मार्करम को आउट कर दिया, वो 90 रन पे बैटिंग कर होता तो आपके पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शन थी उसी का चांस था, आपने आउट करना करानी चाहिए थी। 3 ओवर पड़े थे, वो खेल के तो किसी भी सूरत
एक चीज़ का ज़रूर दुख रहेगा जो भी पाकिस्तान ने जिस तरह के देखें, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए आंखें बंद कर लेते हैं तो वही बात है कि यार कबूतर बैठा हुआ है और बिल्ली को सामने देख के आंखें बंद करके कहे कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो ये वही चीज़ है। हमें एशिया कप में नज़र आया, पहले मैच में हमने इंडिया के ऊपर से आउट कर दिए, बीच में स्पेन आई, स्ट्रगल किया उन्होंने, फिर आपने वो अगले मैचेस में भी देखा, अगेंस्ट श्रीलंका भी देखा कि हमारी स्पेन इम्पैक्ट नहीं डाल सकी। और ये नहीं था कि अनलकी थे, वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, बॉल में निप नहीं है, सही जगह पे गेंद नहीं गिर रहा, तो क्लियरली वी बेसिकली फाउंड कि यार वी आर वांटिंग इन स्पिन डिपार्टमेंट एट द मोमेंट, सो वी हैव टू फिक्स इट, वी आर गोइंग टू द वर्ल्ड कप। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा इतने प्रेशर में जाके, जो ऑलरेडी बेचारे प्रेशर में। वेरी गुड पॉइंट। तो उस टाइप पे आपको एक पक्का स्पिनर चाहिए था, वो करता ना करता डिफरेंट, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता ना, तो अबरार को लेके जाना, दैट वाज वन डिपार्टमेंट वेयर वी शुड हैव डेफिनेटली अबरार को हमें डालना चाहिए। ये आपने 4 तारीख से बोल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप से एक रात पहले से बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑन द कार्ड्स था कि यार इंडिया में आप अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो एक मैच 19-20 होना नहीं, फॉर्म पीछे की परफॉर्मेंस, एवरीथिंग विल गेट टू यू। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मोइन, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो सब लोग गए, ये जरा आपको दिखाते हैं फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वो मौका है जिसकी वो बात कर रहे हैं, इफ्तिखार खड़े हैं वहाँ पे, ये इशारा किया लेफ्ट आर्म स्पिनर का। हाँ, ये भी कह रहे हैं नवाज को लगाएं लेफ्टी मुसलसल। यही वो वीडियो थी जो मैं बोल रहा था कि नजर आया कि यहाँ पे रिजवान भी गए और नवाज जो थे वो बाउंड्री पे थे, ये बाबर ने उनको इशारा किया कि आ जाओ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बाबर किसी की बात नहीं सुनते। वो सुनते हैं भाई, क्यों नहीं सुनते, वो बाबर सुनते हैं बात। ऐसी क्रूशल सिचुएशन पे उन्होंने बात सुनी है और ऐसी बात नहीं, वो बात सुनते हैं। अगर हम एक क्लिप और देख सकें, वो ये है कि जब माकरम आउट हुए तो जब महाराज जा रहे थे बैटिंग करने, दे बोथ हैड अ वर्ड ऑन द क्रॉसिंग, जब क्रॉसिंग कर रहे थे, बिल्कुल। वो अगर आए तो मैं एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो we'll try to bring that clip up because we'll have to look for it। सकता हूँ। एंड जो हमारा जिस पे मिसबा भाई बोल रहे हैं, वसीम भाई बोले हैं, मोइन भाई बोले हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट के 20 बॉल ज़ाया किए, तो सिर्फ वो जो चीज़ है एक, मैं वो ये बताना चाहता हूँ कि यार हमारा थिंक टैंक या हमारे लोग कहाँ हैं कि जब हमारे एंड वाले गए तो उनको ऐसे मैसेजेस क्यों नहीं दिए गए कि भाई 50 ओवर खेलना। ये आपकी वाली फुटेज आ गई शुएब, जो आप जिसकी बात कर रहे थे, ये प्लेस करके ये आउट हुए, ये आउट जा रहे, ये मारा जा रहे। ये देखें, ये उनको बोला गया कि पूरे ओवर खेलना, बेशक मैच हार जाओ। मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी मेन बैटर इस टाइम मारा होता, क्लैरिटी थी ना, just play, just stay there, just stay there। Game never ends। I understand, I agree with you 100%, but one thing I don't agree कि playing internationally for your country for last 5 years or more on in a row, अब ये चीजें बताने वाली हैं। लेकिन वसीम भाई जब प्रेशर पड़ता है ना, मौके पे नवाज ने वो हिट मारी है। He was the only batsman at the crease at that time. He should have finished the overs at least, उसको साथ खिलाना चाहिए था। आखिरी ओवर में चांस ले लेता एक आध बाउंड्री का, 20, 25, 30 रन ऐड ऑन हो सकते थे। मुझे अभी भी यकीन है, स्टेज पे बड़ी बैटिंग की है तुमने, मैंने 7, 8, 9 नंबरों पे। लेकिन वसीम भाई you do need reminders। हाँ, बिल्कुल, रिमाइंडर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। रिमाइंडर्स, फर्स्ट बैटिंग करते हुए अगर आप 50 ओवर्स नहीं खेल रहे, ऑल आउट हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर इनवाइटिंग ओपोनेंट्स कि आपको प्रेशर डालें। जो मोमेंटम हम हमेशा बात करते हैं, जो इनिंग के एंड का मोमेंटम होता है, वही अगली इनिंग से शुरू होता है। और पाकिस्तान में listening to you and Misbah, who are present kind of cricketers compared to me and Moin, you are very very present, and you are saying reminder is a must at that level। So that means कि 90s की जो हमारी क्रिकेट थी वो अभी तक वैसे ही चल रहे हैं हम। जी रिमाइंडर इज द मस्ट। You know, लोग बदल गए, हम बूढ़े हो गए, माइंडसेट वही है। आप अच्छे हुए हैं सारे। आपको किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए? हाँ, आप बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं। ये चीज़ जो अभी हमने बात की है, जो कंसिस्टेंसी बोर्ड के अंदर नहीं होती, पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होती, पूरे आइन क्रिकेट बोर्ड के चेंज करा देते हैं इन्फ्लुएंस करके लोग, पॉलिटिकल लोग आके, तो यही होता रहेगा। अगर आगे भी ये होता रहा तो आपकी बस इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। बिग न्यूज़ क्या है कि नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट क्रिकेट, कि जी एक मीडिया मैनेजर आ रहा है, एक जा रहा है। दैट्स अ मैसिव न्यूज़। कम ऑन गाइस,
Who cares? Yeah, that's just pointless मेरा भी news. पॉइंट वो पूरा खत्म नहीं हुआ जी 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 था। अभी प्लीज मैं सॉरी बरकरार आपके चल रहा था जलसे में हमने क्योंकि पथराव कर दिया, हम नहीं, उसके लिए कोई माफी बात चाहते नहीं, हैं। आप लोग Please, बढ़िया अपना कर जलसा सकते जारी हैं रखें। तो उसमें हम लोगों को देखें, ऑपोजिशन से भी आप सीखते हैं। मैं भी यहाँ बैठे हुए इस चीज़ को सीख रहा हूँ। जब वो आउट हो के आए बंदा ऐसी क्रंच सिचुएशन में जो मैच को इतना क्लोज लेके गया हो, तो वो अपने ख्यालों में होता है ये मुझे शॉट नहीं मारनी चाहिए थी, मुझे मैच जितवाना चाहिए था, ये मैंने क्या किया। बट उसकी जॉब ख़त्म नहीं हुई थी माकरम की। वो उसमें से निकला, उसने बोला नो, आई हैव टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू माई पार्टनर हाउ टू फिनिश द गेम। गेम जब तक ख़त्म नहीं हो, आपकी जैसे बॉलिंग ख़त्म हो गई या बैटिंग ख़त्म हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर एंड्स जब तक गेम ना ख़त्म हो। ये बहुत अच्छा मैसेज है हम सब के लिए जो आज हुआ। That's a very good thing. It ain't over till the fat lady sings. With that, we're going to take another break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and the great Wasim Akram. बात कर रहे हैं हम चेन्नई में जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, जो साउथ अफ्रीका ने जीता। बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था, बिल्कुल आखिर तक ये मुकाबला गया है, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक चीज़ जो बहुत बार बार आ रही है कि क्या अब पाकिस्तान की चांसेस हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने के, तो अभी भी चांसेस मौजूद हैं। और वो कुछ इस तरीके से उसकी सूरत हाल बन सकती है कि अगर पाकिस्तान अपने अगले 3 मैचेस जीते और उसमें अपना नेट रन रेट जो है उसको इम्प्रूव करे, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुछ मैचेस हारे, यानी कि जो लोअर टियर की टीम्स हैं बांग्लादेश, नेदरलैंड्स वगैरह, वो बड़ी ज़रा टीमों को अपसेट करें, तो फिर पाकिस्तान का एक और चांस जो है वो बनता है टू गेट इनटू द सेमीफाइनल स्पॉट। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉट ऑफ होपिंग एंड विशिंग, बट हैविंग सेड दैट, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि जिस तरह आज लड़कों ने खेला है वो अपने अगले 3 मैचेस भी इसी तरह, इसी इंटेंट, इसी डिटर्मिनेशन, इसी स्पिरिट के साथ खेलें। एंड दैट्स ऑल एज अ पाकिस्तानी फैन व्हाट वी रियली वांट। वी वांट टू सी दैट, यस वी वांट टू सी विक्ट्रीज एज वेल, बट नो प्रॉब्लम, अगर हार भी गए तो एटलीस्ट वो नजर आए। सो वसीम, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर मिकी आर्थर? तन्नू मैं ही नजर आया। I have to ask the I question. suppose he said in his press conference after this World Cup, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि यह कम्युनिकेशन कम्बिनेशंस प्रॉब्लम है, हमें टीम जेल नहीं हुई पूरी तरह, एंड देयर होल्स इन द टीम, इम्प्रूवमेंट के लिए लॉट ऑफ एरियाज टू इम्प्रूव. सो आई सपोज इफ ही स्टेज देन ही हैज़ टू कम बैक एंड लिव हियर, बी विद द टीम. कोच पाकिस्तान टीम या क्रिकेट डायरेक्टर सिर्फ पाकिस्तान टीम का नहीं है, वो क्रिकेट डायरेक्टर पूरी क्रिकेट का होता है, जिसमें फर्स्ट क्लास भी आती है, जिसमें ए टीम भी आती है, जिसमें अंडर 19 भी आती है, जिसमें अंडर 16 भी आती है. सो ये भी बताना पड़ेगा एक किसी को कि ये भी जॉब का हिस्सा है. एंड ऑल दीज फॉरेन प्लेयर्स व्हेन कोचेस व्हेन दे कम कोच, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन इंडिया और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनके फॉरेन कोचेस का क्या है. हमारे फॉरेन कोचेस आपको मिलेंगे टूर पे, टूर से सीधा जाएंगे घर, और फिर टूर से 2 दिन पहले आ जाएंगे आपके यहाँ, या 5 दिन पहले आ जाएंगे टॉप्स. सो इट शुड बी लाइक अ जॉब कि साल की ये तुम्हारे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें तुम्हें 45 डेज टू 60 डेज ऑफ मिलेंगे. आपने कब लेने हैं वो हमें पहले बता दें, बट दैट्स नॉट हैपनिंग. जब दिल करता है वापस चले जाते हैं, 1 दिन पहले आ जाते हैं. की तरह ट्रीट कर रहे हैं नेशनल टीम को. लीग में ऐसे होता है ना, 3-4 दिन पहले कोचेस आते हैं. मुश्किल होता है क्योंकि स्केजुलिंग ऐसी है दुनिया की सारी टीमों की, उसमें मुश्किल होता है. बट once you are with a national team, with a national team, then you have to be accepting there. a job like this, you got to give your 100%, not just physically, mentally, and be there. That's the part of the job. That's simple. I don't know how he accepted that job, but obviously I would have as well. राइट दोस्तों, और अब हम ब्रेक पे जाने लगे, बट ब्रेक से वापस आकर टाइम है आपके फेवरेट सेगमेंट का. हैशटैग आस्क द पवेलियन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. हैशटैग आस्क द पवेलियन. ऑलरेडी बहुत सारे सवालात, लोगों के कमेंट्स, नाराजगी, गम, गुस्सा, सब हमारे पास मौसूल हो चुका है, मगर आप भी इस पे भेज सकते हैं ट्विटर पे भी, एक्स यानी के, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, इट्स गोइंग टू बी टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस.
Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and the ARY Zap app. और अब वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट का, which is #AskThePavilion. Pavilion में मेरे साथ मौजूद शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान और वसीम अकरम है. सबसे पहला सवाल. So did you just made this up? के आपका favorite? I would assume so because इतने सारे messages आते हैं. I would assume so. What would you think? This is not their favorite? No, 100%. 100%. State away. Stayed away. It's stayed away. तेरी position नहीं है. All right. So I'll get into the एक सवाल जो कि बार-बार मैं टाइमलाइन के ऊपर देख रहा हूँ, मुसलसल #AskThePavilion पे, X पे भी और Facebook पे भी, और वो एक यूनिवर्सल सवाल है जो कि कम से कम भी 40-50 दफ़ा नज़र आ गया मुझे अभी स्क्रॉल्स के अंदर ही. वो ये है कि जी आखिरी ओवर, ये आखिरी तो नहीं, मतलब जो आखिरी ओवर खेला गया वो नवाज को क्यों दिया गया, उसामा को क्यों नहीं दिया गया. एक ये सवाल है कॉमन, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है. और दूसरा सवाल लोगों ने किया हुआ है कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था, जब उनको लेकर आए थे, ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर उनके ओवर रोक क्यों लिए. क्योंकि जब वो उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने तो उस वक्त सिर्फ 27 रन रह गए थे. उनको चाहिए था कि वो उनको बॉल थ्रू करते, क्यों नहीं बॉल थ्रू किया. These are the two questions which have come in multiple times. तो ये आप लोगों के लिए ओपन है. Who wants to comment on that? ये तो हमारे भी सवाल है. Actually हमारे भी सवाल है. But what do you think? What as a because आप लोग सारे कैप्टन्स रहे हैं. So how does a captain think? लेकिन यही मिस्टेक्स हैं. यही मिस्टेक्स हैं. When you are thinking about 50 overs, then game is over. एक ही तरीका था, जब आप शुरू में आपने थोड़े से रन्स लीक कर दिए, देन वो दूसरा चांस तो ख़त्म हो गया ना कि इस टोटल को डिफेंड करना है आपने. हमने तो अपने लिए सिर्फ एक रास्ता छोड़ा उसके बाद कि ओनली वे वी कैन विन बाय गेटिंग देम ऑल आउट. और वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था कि 50 ओवर तक जानी है गेम. वहाँ पे फिर हमने बेस्ट वे में अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज़ करना था जिससे हम आउट कर सकते हैं उनको. ठीक है जी, हमसे मिस्टेक्स हुई, थोड़ी सी बॉलर्स ने बॉलिंग इतनी एफर्ट की हमने, बट एट द एंड ज़ाहिर है लास्ट ओवर हो सकता है उसामा को भी रन्स हो जाते. बट लॉजिकली मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो टीम में आए, ये बड़े फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में. इस स्टेज पे किस तरीके से वो अचानक टीम में आए एज अ कंकशन सब, उसके बाद अच्छे कैचेस किए क्रूशल स्टेजेस पे. ठीक है बॉल कहीं गलत हुए बट क्रूशल विकेट्स ली, गेम में वापस लेके आए. नवाज स्ट्रगलिंग. सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में डिसीजन बड़ा इजी होना चाहिए था कि उसामा शुड हैव बोल्ड दैट ओवर. और शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने क्यों नहीं कंटिन्यू करवाया ओवर जब उन्होंने ब्रेक थ्रू दे दिया था. देखो वो डबल माइंडेड हो गए एज अ लीडर कि शायद ये मैच जो है 50 ओवर तक चला जाएगा, शायद ये पहले चला जाएगा. तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो डबल माइंडेड हो गए, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू जो है शाहीन से नहीं करवाया. राइट. बैम्बूजल्ड रूफी 999 आपने कमेंट भेजा है, इफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेड ऑल देयर प्रीवियस मैचेस लाइक दे प्लेड टुडे वी वुड बी इन द टॉप 4 टुडे. यस, दैट्स व्हाट वी वर ऑलवेज सेइंग. That had they always played. अच्छा जनाब, अगला सवाल ये है. सलाम टू ऑल द पैनल. Why we keep Fakhr in the squad as he is unfit? Why we can't play Haris as an aggressive opener? हसनैन आपका नाम है, हसनैन रजा आपका एक्स हैंडल है जी. नहीं है, इंजर्ड नहीं है. I've seen him fielding. वो आए थे आज फील्डिंग करने आए थे ग्राउंड में. करने आया था बेटा. फील्डिंग किया उन्होंने. हारिस है, he's the other batter in the 15, am I right? Haris? No, not in the 15. जो बाहर में हैं, 3 जो हैं. नहीं है 15 में भाई, बस कर दो. हारिस देखिए जब तक अनफिट प्लेयर को टेक्निकल कमेटी डिक्लेयर नहीं करती दैट ही इज अनफिट, ही इज नॉट गोना टेक एनी मोर चांस इन द वर्ल्ड कप, फिर ही आप जो आपके पीछे रिजर्व्स है हमारे, उसमें से आप किसी को अंदर ला सकते हैं. एक्सप्लेन कर. इतने क्रिकेट का प्यार है, इतने डिटेल क्वेश्चन पूछते हो और दरमियान में फिर अमली मार जाते हो कि उसको खिला दे, बरार को क्यों नहीं खिलाते, उसको क्यों नहीं खिलाते. भाई वो 15 में नहीं है, कोई इंजर होगा तो आएगा मेरी जान. आई थिंक वसीम उसमें एक और चीज भी, आई थिंक मे बी द क्वेश्चन दैट दे ट्राइंग टू आस्क इज कि वो 15 में क्यों नहीं है. यू नो दैट, आई मीन दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. दैट्स अ बेटर क्वेश्चन. दैट्स अ बेटर क्वेश्चन टू हैव. आई थिंक वो जो पूछना चाह रहे हैं एंड आई थिंक वो फ्रेज नहीं कर पा रहे कि ये 15 में क्यों नहीं है. ये फखर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी जो 15 हैं यही तो हमारी मिस्टेक है. चाहे जैसे भी खेल रहे हैं, फॉर्म है, हर चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो टीम मैनेजमेंट पे या इन पे वो यही है कि हमारे 15 में जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास
बेंच पे वो लड़के हैं जिनको किसी भी प्लेयर के साथ रिप्लेस करना हमें मुश्किल हुआ होगा। हमारे पास एक्स्ट्रा बैटर हैं, हमारे पास जो बॉलर हैं स्पिन बॉलिंग, वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे उस तरीके से आके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो इवन ओपनर फ़खर भी बैठे हुए हैं, तो फ़खर भी आउट ऑफ फॉर्म होके बाहर बैठे। That's true. चलिए, Though I have एक to. सेकंड, सॉरी, क्विक वन। अब जैसे प्लानिंग की बात कर रहे हो, ये लड़के क्यों नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू नो, फाइन। अब आप वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहुंचता है नहीं पहुंचता, हाईली अनलाइकली, अल्लाह करे कुछ हो जाए मज़ा, पर हाईली अनलाइकली। और उसके बाद आपका 14 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच है और वो है पर्थ में, जो दुनिया की तेज़ तरीन विकेट है। बैट्समैन तो छोड़ो, मुझे बॉलर बता दो कौन जाएंगे 3 जो खेलेंगे प्लेइंग 11 में। नो वन हैज़ नो आइडिया। Yeah, I think we'll find out about that, and we'll all be keeping our eyes on that. Shazia Kamran 250 at 250. Shazia Kamran 250. आपका सवाल है, do you think lack of fitness was one of the causes of our defeat in this World Cup? In Shazia my Kamran. humble opinion, Shazia, absolutely spot on. I've been saying since Asia Cup, just before Asia Cup, I was working there and I was watching them during the game. इनके लाइक सेट के दे शुड बी अ फिटनेस टेस्ट एवरी मंथ। आपके दौर में कब फिटनेस टेस्ट होते थे? क्वार्टरली होता है, एवरी क्वार्टर करें। जो भी दुनिया का सिस्टम है, वेट हो, बॉडी फैट, बॉडी मास जो भी होता है वो चेक हो एवरी 2 वीक्स, वेट एंड फैट लेवल एवरी 2 वीक्स। मेरा नहीं ख्याल हुआ है जब से ये मिसबा वगैरह गए हैं, जब से हमारा एक चेयरमैन आया था जिसने आते ही 3 बंदों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप काम नहीं कर रहे। कोई बंदा टाइम से रहा है, वेट करता है, नई जॉब लेते हो, अपने बुलाओ सबको, अपने जो भी पीसीबी में काम करने वाला उनसे पूछो, मशवरे लो, एंड देन मेक योर डिसीजन। एक और जरूर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने क्वार्टरली रखा हुआ था, लेकिन आप लोगों के जो टूर्स थे, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है जी, लेकिन जो आप लोगों के टूर्स थे, दे वर नॉट प्लान्ड, दे शुड बी प्लान्ड। क्योंकि अगर आप टूर्स जो टीम के होते हैं या होम सीरीज हो रही होती है, देखें फटीक होता है बंदा जब फिटनेस टेस्टिंग देता है, लेकिन कुछ फिटनेस टेस्टिंग ऐसी भी हुई कि वो सीरीज के बीच में हुई, दैट वाज रॉन्ग। तो अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, आई एम ऑल इन फॉर फिटनेस टेस्टिंग, फिटनेस शुड बी द क्राइटेरिया, लेकिन ये है कि वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टूर पे आपके लड़के जा रहे हैं, आप उनका फिटनेस टेस्ट ले लो, आप उनको मार दो पहले ही, अब वो बड़े टूर पे जा रहे हैं। नहीं, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, एवरीथिंग शुड बी गिवन विद फुल क्लैरिटी। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, ये परसेप्शन गलत है। इफ़ यू आर सेइंग कि हमें टाइम चाहिए फिटनेस टेस्ट के लिए, गेट रेडी होने के लिए, मैं इंग्लैंड सीरीज़ में 2016 में हम गए, सीरीज़ से पहले हमने फ़िटनेस टेस्ट दिए, फ़िटनेस टेस्ट रोज़ देते थे, उसके बाद नेट प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद हम मैच भी खेलते थे। फ़िटनेस टेस्ट इज़ नॉट टू गेट फिट। फ़िटनेस टेस्ट का मतलब ये है कि आप उतने फिट हैं कि वो फ़िटनेस टेस्ट आपके लिए पीस ऑफ केक है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करनी है, फ़िटनेस टेस्ट पास करने के लिए ट्रेनिंग नहीं करनी। और अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि सीरीज से पहले हम तो ड्रेन हो गए फिटनेस टेस्ट की वजह से, भाई क्यों? यो 17 दौड़ने से आप क्या फटीक हो गए? क्या है, 15 मिनट की रनिंग है, 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल, इट्स 8 मिनट्स। बेंच प्रेस अगर मैंने करना है 6 रैप बॉडी वेट, मैं उसे ड्रेन हो गया हूँ, तो मैं मैच कैसे खेलूँगा? Very good point. Very good. मेरे ख्याल में I agree with you. I agree with you. क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए आपके टूर्स के बीच में, क्लॉजेस बिल्कुल क्लैरिटी होती है। साल के पहले आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपके फिटनेस टेस्ट नहीं होता ऐसे। आई वाज कॉल्ड अगले दिन इंटरनेशनल मैच था, मेरा एक दिन पहले टेस्ट लिया गया। सो लेट्स नॉट गो देयर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है। वो इस तरह आ सकती है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो खैर ठीक है, टेस्ट ड्रामे हुए हमारे दौर में भी, बड़े ड्रामे हुए, ये होते हैं। तो मुझे इन्होंने अनफिट करना था जो भी हमारा है। Okay, I understand, gentlemen, but I would say that the fitness test and the fitness level should be maintained for a professional athlete throughout the year. अच्छा, एक चीज़ मैं और बात It should be maintained throughout the year. और जिस तरह हम एविएशन में होता है कि हमारा स्पॉट चेक हो जाता है, अचानक कहा जाता है आ जाओ जरा ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके दिखाओ, आउट ऑफ द ब्लू,
आउट ऑफ द ब्लू, वी आर नॉट गिवन एनी प्रिपरेशन, अचानक स्पॉट चेक हो सकता है। उसी तरीके से एथलीट के लिए, एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए, इवन दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एविएटर, आई डू लेजर फ्लाइंग, बट आई स्टिल हैव टू गो थ्रू दैट। एक चीज और मैं ऐड ऐड करूंगा करना यहाँ चाहता हूँ, पे। इनके बाद मैं बोलता हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो वसीम भाई ने बात की, इट्स नॉट ओनली फिटनेस। देखें, लड़कों का कसूर भी नहीं है इस चीज़ में। जो वसीम भाई ने बात की ना, जिस किस्म के स्केजुअल से आपने उनको क्रिकेट खिलाई बिफोर द वर्ल्ड कप, वो तो जिसने भी ये हाइब्रिड मॉडल डिज़ाइन किया, जिसने भी श्रीलंका की सीरीज़ जिस तरीके से की, आपने वर्ल्ड कप को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। मिसबाह उसके आप अपने अलावा- सारे फास्ट बॉलर्स को ड्रीम कर दिया उसके वहाँ अलावा आपने पे। लीग्स की फिर परमिशन, travel। इन बिटवीन ट्रैवलिंग लीग्स की परमिशन, आपके मेन प्लेयर्स लीग खेलते रहे जाके, you know। मेरा तो ख्याल है fatigue I नजर आ think रही है ना इसमें आपकी कोई- main fast इसमें तो bowling। कोई डिबेट और शक ही नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर, बल्कि साल से तो किस्सा चलते आ रहा है, हम वही किस्से बार बार सुन रहे हैं, बट ये जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो तमाशे लगे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी वजह से पिछली मैनेजमेंट, उसके बाद वाली मैनेजमेंट, ये वाली मैनेजमेंट, सब अल्हम्दुलिल्लाह बराबर के शरीक हैं। और इसी मौके पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक टू द पवेलियन। और हैशटैग आस्क द पवेलियन का सिलसिला जो है वो जारी है। आप लोगों के सवालात और कमेंट्स आ रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद शुएब मलिक, मिसबाह हक, मोइन खान एंड द ग्रेट वसीम अकरम। जनाब पुनीत मल्होत्रा, पुनीत दागामेर आपका एक्स हैंडल है, और आपने कहा है डाकिया अटायर। जी, वो कुछ ऐसे ही फील हो रहा था आज हमें। क्यों कोई वसीम? आपने तीर नहीं मारा, मैं सुबह से कह रहा हूँ डाकिया डाकला है। डाकिया डाकलाया। कोई तीर नहीं मारे। अब मोहम्मद अदील का एक मैसेज है, जी। व्हाई यू पीपल आर नॉट गिविंग अ चांस टू मिसबाह हक टू टॉक, लेट हिम टॉक फ्रीली एंड लिसन टू हिम प्लीज। अल्लाहु अकबर। तौबा, तौबा, कान तौबा। पकाते ने आने माफ कर दे, ले जा इन्नू, जा यार। कैमरे में देखे ना, सारे कहाँ हैं? हाथ जोड़ लो। नहीं, बात सही है। इस वाले प्रोग्राम में कोई बात नहीं है मिसबाह से। क्योंकि वो पिछले कमरे में सारा बोल लेते हैं। अच्छा जी, आनंद भीम 36459947, आनंद आप पूछ रहे हैं वसीम भाई से, डू यू थिंक द 21 एक्स्ट्रा रन्स पाकिस्तान by Pakistan today played a role in South Africa win? I mean 21 extras in a World Cup match, this is crucial. Is it acceptable? It is crucial, but again, South Africa मैंने more or less उतने ही दिए हैं यार. So yeah, every run is important, I suppose. Let's see how many They've given 19, 11, 4 and 4, 19 and we given 15. नहीं 21। So 2 रन का फर्क है. Yes, अगर बड़ी बिग पिक्चर में देखा जाए तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रास, अगर पहली बॉल पे अगर पांजा ना देता तो शायद वुड हैव बीन डिफरेंट गेम. अगर वही हम पूरे 50 ओवर खेलते वुड हैव बीन डिफरेंट गेम. अगर फूफी को मूछे होती तो उसे चाचा कहते, वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम. Yeah, naughty boy, very naughty boy वसीम. अच्छा जनाब, आराम है ये। सुहेब बशारत अंडरस्कोर सुहेब आपका एक्स हैंडल है. सो सुहेब बशारत, आपका सवाल है, what is our coaching staff doing? We didn't do any homework against any opponent. Other teams have worked against our every single batter. Giving speeches and clapping in the nets is not enough. जी बिल्कुल सुहेब, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मिकी आथर ने भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उससे भी डिसएग्री करते हैं क्योंकि those are excuses. Anybody would like to add to that? मिसबाह हम बोलने नहीं दे रहे। आपने नहीं बताया। पहले आप कह रहे हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं नहीं नहीं, कह रहा हमने हूँ नहीं कि बोला। बंदा कह रहा है बंदे- मोहम्मद आप अदील कि आप मौका कम दें। बोल रहे हैं. तो देखिए, प्लान्स आप आपका जितने मर्जी बना लें, बात एग्जीक्यूशन की है. एग्जीक्यूशन जब तक आपकी ठीक नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी उन प्लान्स में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. जैसे आज आपने प्लान किया कि इफ्तिखार ने बॉल करना है, बट इफ्तिखार ने अगर बॉल करना है तो क्विंटन डी को विकेट टू विकेट बॉल करना है लेफ्ट हैंडर को, ताकि आप नेचुरल वेरिएशन पे वहाँ से अगर सीधा बॉल पैड पे लगने का चांस है, लेग बिफोर बोल्ड का चांस है, स्पिन होगा तो स्लिप में जाएगा. उनसे नहीं हुआ. ऑफ साइड द ऑफ स्टम्प, इट्स अ फ्री हिट. नया बॉल बल्ले पे भी आता है तो वो अर्ली ऑन आप अगर वो रन्स लीक करते हैं तो प्रेशर वापस आ जाता है. So ये चीज़ें मैटर करती हैं एट द एंड. मेरे ख्याल में डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, प्लान्स की वो बड़ी ज़रूरी है. बाउंसर का हम प्लान करते हैं तो बाउंसर एक, जैसे उन्होंने रिजवान को किया,
इस तरह फिर एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेटअप है ये अच्छा, चूंकि आपने बात की, सॉरी वसीम। या गाइस अनदर मिसबा बाउंसर जो मारना है, जैसे मिसबा या शुएब या मोइन हम बात करते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, बैट्समैन को देख के ऑफ स्टंप के बाहर करना है या उसकी बॉडी में करना है, वो लंबी क्रिकेट खेल के आता है, T20 से नहीं आता। T20 में एक आधा बाउंसर करते हो सर से गुजर जाता है, जो डॉट बॉल मिल जाती है, बड़ा कम चांस होता है। जब तक लंबी क्रिकेट ये हारिस रऊफ वगैरह नहीं खेलेंगे, इनको वो जो वसीम के आज बाउंसर अच्छे थे, वो आगे से बाउंस करने की कोशिश कर रहा था कि बॉल यहाँ तक कहीं के आए, बिल्कुल पीछे मारोगे तो ऊपर से गुजर जाएगा, वाइड हो जाएगा। सो बाउंसर करना इज़ नॉट दैट ईजी द हाइट यू वांट टू, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैच प्रैक्टिस। गुलाम फरीद मिर्जा जी फरीद मिर्जा आपका एक्स हैंडल है। आपने पूछा है कि शाहीन बॉल 12 balls to the tail enders. He just tried the batter to leave the balls away. Why he didn't bowl wicket to wicket, as it could create more chances like LBW edge, or bowled as Wasim and Rauf were trying to do so. At international level, guys have to have that awareness. Guys, I think we have the best person, Wasim bhai. बात भी कर रहे थे आप, बात कर रहे थे ये कि ये बाहर क्यों निकाल रहा है। Around the wicket एक और आगे भी कर रहा क्वेश्चन आया था कि ये अराउंड द विकेट आ गया था। आई सपोज जब रिवर्स होता, आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल या वकार्स, जब रिवर्स होता था तो हमें कंट्रोल था, हमें पता था कि हम इधर से भी आएंगे तो मैं मिडल से बाहर निकाल लूँगा, ऑफ से नहीं। मिडल से जब टेल एंडर को निकालते हो हल्का से जाएगा तो चांस है डंडा उड़ने का, मोस्ट ऑफ द टाइम फुल बॉल पे। और जब अंदर भी लाना उसको तो जस्ट आउटसाइड ऑफ, ज़्यादा बार से नहीं, ऑफ स्टम्प के इतना बार से लाना ताकि वो ऑफ स्टम्प या मिडल में ख़त्म हो। आइडिया इज़ टू हिट हिम ऑन द पैड्स एंड ऑन द ऑन द स्टम्प्स एंड अराउंड द विकेट। जब रिवर्स हो तो आओ, मोस्टली शाहीन मेरे ख्याल में राउंड द विकेट तब आता है नए बॉल से जब उसका इधर से कंट्रोल नहीं हो रहा होता। राइट चीज़ और भी है जो वसीम भाई ने एग्जांपल दी, वो हमारे सामने एग्जांपल आज ही के मैच में हारिस रऊफ ने रिवर्स हो रहा था, उसने बाहर निकाला मिडिल स्टंप से, जो टॉप एज लगा और उन्होंने बड़ा एक्सीलेंट कैच पकड़ा दिया। तो मैं जब यू सी आई हैव लर्नड, अब आई थिंक शाहीन इज यंग, ही इज लर्निंग कि जब आपने टेल एंड को यॉर्कर मारना है राउंड द विकेट से, आपने एम करेंगे लेग्स पैडों का एम करोगे तो वो मिडल में ख़त्म होगा, डिपेंड्स कितना स्विंग हो रहा है। और अगर मिडल का एम करोगे तो वो ऑफ स्टंप पे ही ख़त्म होगा। सो दैट्स वेयर ही हैज़ टू लर्न वेरी क्विकली। अच्छा जी, हैदर अली बुत्तर, अब ये मैं अगर बिकॉज लास्ट टाइम में मुझे किसी कहा था मैं गलत प्रोनाउंस करके, आई होप इट्स नॉट, आपका ट्विटर हैंडल जो है वो है हैदर अली BUTTAR, so I'm going to leave it at that. Okay, आपने कहा जी biggest drawback of the losing streak this year is no dancing steps from your panel. Really missing that stuff, boys. Any chance we're going to see that? भाई ससुराल, if not Pakistan, भाभी ससुराल, अगर उनकी विक्ट्री पे ऑस्ट्रेलिया I reckon plan B is a very good idea. अगर आज हम नाचते तुसी लोगों ने छितर मारने सन। Fair enough. Right, we've got more questions coming in and here we go. सवाल है रुवेल जाहिद का, रुवेल RVEL and Zahid, so यही आपका X का हैंडल है. How much did the abrupt changes in PCB top brass this year and coaching panels have affected planning for this showpiece event? So I think we've already spoken about that in length. आप इस प्रोग्राम में शुरू में आप देख चुके होंगे कि it was quite yeah, right. And you know what, we're going to take a break with that, and when we come back, let's see what we have in store for you tomorrow. Right, welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup to 2023. Congratulations to South Africa. They have played a magnificent game of cricket, and bad news for Pakistan. But hey, at least our boys fought really hard today. And with that, let's take a look what we have in store for you tomorrow. कल दो मैचेस हैं. It's a double header. और आज के दिन एक्चुअली रात के 12 बजे लेट हो गया तो आज ही है हमारे मैचेस. पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड, सुबह 10 बजे जो है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. इसको धर्मशाला से लाइव आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके लिए हम कल सुबह 8:30 बजे स्टूडियो में मौजूद होंगे. और दूसरा मैच जो है वो आपकी स्क्रीन पर बाहर है. ये नीदरलैंड्स मुकाबला बांग्लादेश है. कोलकाता से 1:30 बजे शुरू होगा ये मैच. बट आई एम श्योर कि कल ज़्यादातर फैंस हैं पहला मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का देखना पूरा देखेंगे. और देन ऑफ कोर्स नीदरलैंड्स एंड बांग्लादेश का ये मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. एंड दैट्स व्हाट वी हैव इन स्टोर. कल सुबह 8:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे.
Shoaib Malik, thank you Thank very you so much. much. And Moin Khan, thank you very much. Misbah ul Haq, thank you very much. Wasim Akram, thank you very much. Gentlemen, go have a good sleep because we have to be back here in a few hours. What? Yes. बहुत शुक्रिया साड़ी जान छड़न जान की छड़नी वापस आने ऐसी स्टूडियो जान के चलो जी चलो चलो फिर Thank चलिए you. पाजी। Let's go. पक्की बात Yes. Should we? Eat bit. Idbit Gulkan. Idbit Gulkan. Good night.